Hello and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371-7117. For listeners who will be calling us from outside Delhi, please remember to prefix the Delhi STD code 011. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Nimish Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निमिश कुमार। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर एक नजर के साथ आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 2331 4444, 2371 7106, 2371 7117। दिल्ली के बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार निमिष, नमस्कार अनुभा और सभी श्रोताओं को आजादी के अमृत महोत्सव पर मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले इंग्लिश हेडलाइन के साथ अनुभा रोहतगी। Thank you, Nimish. Country's exports, including merchandise and services, grow 11.5% to over $61 billion in July. Rising for the fourth straight week, Sensex climbs 1,075 points during the last week. And on the Wall Street, the Dow advances 1.3% on increased investor confidence that the bull market could be underway. जुलाई महीने में भारत के निर्यात में 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय निर्यात 61 अरब डॉलर को पार कर गया है। सेंसेक्स में लगातार चौथे हफ्ते भी बढ़त देखी गई है। हफ्ते के अंत में सेंसेक्स पर 1075 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार में भी डाउ 1.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निर्यात में पिछले महीने जुलाई में खासी बढ़त देखी गई। निर्यात में यह बढ़त मर्केंटाइज और सेवाओं में विशेष रूप में दर्ज की हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में 11.51% की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि निर्यात 61.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। वहीं आयात में भी पिछले वर्ष की तुलना में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई महीने में भारत का आयात 82 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से जुलाई तक की अवधि में भारत का निर्यात 253.8 अरब डॉलर हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस तिमाही में 23% की बढ़त देखी गई है। जुलाई माह में सेवाओं का निर्यात 24.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कॉफी, धान, पेट्रोलियम उत्पाद, चमड़ा और चमड़े से बने सामान के निर्यात में वृद्धि देखी गई है। And we have already been joined by our first listener, our first caller of the day, that is Kavi from Vadodara. Welcome to the program, Mr. Kavi. Please ask your question. Yes. जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, good evening. Myself Kavi, I'm calling from Vadodara. जी। And first of all, I would like to thank the entire Market Mantra team for doing such a great and nice program. And my thanks to Mr. Kohli sir also for sharing his knowledge in the program. जी, thank you so much. Please ask your question. Hello. Looks like we have lost contact with Mr. Kavi. So, Sharad ji, coming to the, the export story that Nimish just read, the Indian exports, of course, overall very good news, 11.5% increase. But at the same time, the trade deficit, because while there has been an increase in exports, the imports have also, in fact, risen quite a bit. So as of now, the trade deficit stands at $30 billion in July. A cause for worry? Yes, definitely. I mean, because although it's very promising to see the exports growing, but as I said earlier in the day in Money Matters, that import growing as well, sort of nullifies or neutralizes the gains that we make or neutralizes the merits that we gain to a certain extent.
But we should also, Anubha, not forget at the same time that most of these imports constitute energy and oil, which I feel at this point of time, because of weaker rupee and because of the crude oil prices, energy crisis in Europe, and so on and so forth, I feel that this might be a transitory phase and it should be over soon. And I think the moment imports start stabilizing or they come to the usual normal level, I think we'll be in a win-win situation, because on export front, anyway, we are doing well. And this particular export numbers, Anubha, they are particularly, good to be mentioned, because the world overall is right now not in a very, very healthy position. I'm talking of the world economy. Yes. So if in such a situation we are able to garner these kind of numbers, I think there is something to feel proud of on this 75 years of independence, something to rejoice, I would say. बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से महेश जी। महेश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अपना गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली I want to invest directly into the equities in the US market and all. Okay. I think there are I've gone through. There are, I think, few sites or few apps are there which offer that and all. Yeah. How safe they are and what is the mechanism? Because the definitely आपको ICICI Direct वगैरह में तो वो INR के Indian का होगा. Yes. But wherein आपको US वगैरह का तो it's a dollar and also probably even single equity itself it may be so costly. So any partial or something is there? Any partial purchase or a partial dollar purchase or something? Just I want to know that. Mahesh, there's partial system basically, but what I would suggest you is, because the first part of your question was that how much can you trust these apps? Are they apps genuine, or do they really, or they are there to fleece money? Because about the apps, we keep hearing about all sorts of things. Some of them turn out to be quite non-genuine, if I would like to say. So I think the best way, Mahesh, to go is, because there are a lot of Indian broking companies and Indian financial intermediaries who are now helping people in trading in the US stock markets. So I would suggest that instead of signing up for an American app or for an international app for that matter, let me not talk American, it could be a Chinese, it could be a European. There are a lot of apps which help in consumers trading in the US stocks. So I would suggest instead you choose a local app, which is there are a lot of apps here. We don't, of course, name them. We don't name the brokers here who help in US stock markets, but there are a lot of them who are doing it right now. A lot of Indian interest has, been arisen in the recent times. So I would suggest you to pick up an Indian broker, check with Indian good broking company. All good large broking firms, most of them are helping their customers on the US stocks as well. So you choose them, but there's no concept. Either you trade in the Indian rupees, or you have the conversion rate applied, and there are certain regulations under which you can trade in the US dollars, because as far as Indian is concerned, you must be aware of liberalized remittance scheme, under which any Indian in a year cannot utilize more than $250,000 per person. So keeping that in mind, it is regulated. We are regulated by Foreign Exchange Management Act. So you contact the broker, you will get all the details, and I think it will also be safer for you, Mahesh. And now the next caller is from Kolkata, Mr. Pranab. Mr. Pranab, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, good evening to the Market Mantra team. I would like to know what is the Nifty CPSE fund, and from Mr. Kohli, what are your views on the short-term and long-term opportunities of this fund? Thank you. Well, Pranab, although, on the mutual funds, there is a dedicated show on Sunday evening, Market Mantras, and an expert on mutual fund is called, who exclusively deal with. But nevertheless, since you've called, although I normally toss over those questions to tomorrow and request the listeners to call again tomorrow, but since you've asked of a particular fund, I can obviously make a brief comment. The Central Public Sector Enterprises Fund has got a very promising future, because government is planning to disinvest. Government is planning to dilute its own share in the times to come. So whatever PSE share that you hold, I think has got a bright future if you keep a long-term perspective. If you remember Prime Minister's statement, and I believe in the same philosophy, that government has no business to be in business. So government gradually wants to exit these PSEs. So I think from a long-term perspective, as the management changes, it become more professional, private investors come in. So we see a very bright future for the public sector undertaking. Some of them are part of our Navratnas, they are doing very well.
and they've got a brighter future. So a long-term investment in a CPSE fund is definitely recommended, Pranarda, although I would again suggest you to try and call tomorrow for going into more specific. Yeah. So, हमारे साथ अब थाने से जुड़ रहे हैं गुरुनाथ जी मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो गुरुनाथ जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। पुलिस सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो अपना कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में सर, सहकारी बैंक, इनका नेटवर्क हमारे देश में बहुत बड़ा है, हमारे महाराष्ट्र में भी। लेकिन सर इसमें जो है, ये जो पॉलिटिशियन लोगों का ज्यादा इंटरफेयर रहता है, क्योंकि इन्हीं के जो पॉलिटिशियन राजनीति लोग होते हैं, उनका जो पैनल चुन के आता है वही कामकाज ज्यादातर दिखते हैं, और हमेशा इनका इंटरफेयर ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो लोन देते हैं वो अपने करीबी लोगों को या खुद उठाते हैं। और देखा जाए तो मैं अभी सर, मेरा भी एक कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है सर, मैं वो विड्रॉ करने गया सर, ना मेरा ज्यादा पैसा नहीं, 1.5 लाख रुपए पड़ा है, मैं विड्रॉ करने गया 50,000, बोले बैंकों का हालात ठीक नहीं। तो सर ये जो रिजर्व बैंक के रेगुलेशन में अभी ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये सर रिजर्व बैंक क्या इसमें इनके कामों में कुछ मतलब बदलाव कर सकते हो? क्योंकि अभी अभी जो एक रुपी बैंक सरकारी बैंक है उसका भी परमिट कैंसिल कर दिया सर। तो आगे चल के सर ये इसको थोड़ा सा मतलब क्या रिजर्व बैंक क्या देखे? थैंक यू। देखिए गुरुनाथ जी, आपकी बात कुछ ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में समय समय पर कुछ न कुछ ऐसी खबर आती रहती है जो कि बहुत ज्यादा सुहावनी नहीं होती, बहुत ज्यादा दिल को पसंद नहीं होती है। कहीं पता लगता है कि वो बैंक डूबने की कगार पे है या उनके डिपॉजिटर्स को परेशानी हो रही है। आपने दूसरी बात जो कही कि वो कुछ लोन डिसबर्समेंट में भी इरेगुलरिटीज कभी कभी देखी जाती है, ये बात कुछ हद तक सही है। यार मैं इसलिए कह रहा हूँ सही है, मैं कोई कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं गुरुनाथ जी, उसको देखते हुए मैं इस बात से सहमत हूँ। तो देखिए, कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव एक्ट रेगुलेट करता है, जबकि जो बाकी प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट करता है। तो रिजर्व बैंक की जो दखलंदाजी है या रिजर्व बैंक का जो रेगुलेशन है इन बैंक्स में, वो कोऑपरेटिव बैंक्स में थोड़ा सा सीमित रहता है। उतनी ज्यादा रेगुलेशन कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं होती जितनी रेगुलेशन और जितनी आंसरेबिलिटी नॉन कोऑपरेटिव बैंक के, मेरा मतलब है जो नेशनलाइज्ड बैंक है या जो प्राइवेट बैंक है, उनकी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो उनकी आंसरेबिलिटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के प्रति, वो बहुत ज्यादा है। कोऑपरेटिव बैंक की थोड़ी सी कम है, इसीलिए आपको वहां पर कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो हम तो लोगों को सलाह देते हैं, जहां पर भी आपको थोड़ा सा लगे कि कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है या वहां पर कोई ऐसी खबर सुनने को मिल रही है, तो आपको अपने पैसे को वहां से हटाना चाहिए, क्योंकि उसको उस दिन की इंतजार नहीं करनी चाहिए कि जब ऐसी फाइनल खबर आए कि साहब उस ब्रांच में ताला लग गया या यहाँ पर कुछ हो गया। इस खबर का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो हमें खेद है कि आपको बैंक में आपका 1.5 लाख रुपया है और वो कह रहा है अभी 50 ले जाइए या जो भी है, तो मैं सलाह दूंगा अभी तो जो दे रहे हैं आप ले लीजिए। हालांकि आरबीआई ने समय समय पर इनके लिए बहुत रेगुलेशन बनाए हैं और धीरे धीरे आरबीआई इन कोऑपरेटिव बैंक्स पे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जब तक ये पूरी तरह से हो नहीं जाता तो हमें ये ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहेंगी। तो आपको मेरी सलाह ये है कि आप अपना पैसा निकालें। सभी कोऑपरेटिव बैंक ऐसे नहीं है, हम जनरल स्टेटमेंट एक नहीं दे सकते, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे मैनेज भी हैं। तो आप अपना पैसा उनसे मांगते रहिए, जब मौका लगे तो आप शिफ्ट करिए। बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, आपको जो पसंद हो, आपके नजदीक हो, आपको सहूलियत देता हो, आप उसमें अपना पैसा रखें। पर जो आपने बात कही काफी हद तक वो ठीक है जी। And now the next caller is Jitendra from Khajuraho. Jitendra, welcome to the program. Please ask your question. हेलो। हेलो जी जितेंद्र, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। जी मैम नमस्ते, और शरद कोहली सर को भी नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र जी। 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन है कि मुफ्त और कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं इसमें क्या डिफरेंस है और ये अर्थव्यवस्था को किस रूप में प्रभावित करती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये हम कब समझें कि हम मार्केट के एक्सपर्ट हो गए हैं, इसके क्या मापदंड हैं। थैंक यू सर। क्वेश्चन है जितेंद्र जी। आप हर हफ्ते हमसे करीब करीब जुड़ते हैं, मेरा बहुत मन करता है कि खजुराहो आपको सुन के खजुराहो जाया जाए, घूमा जाए वहां पर। खैर देखिए, जो आपने पूछा मुफ्त और कल्याणकारी, काफी इस पे आजकल चर्चा कर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे हस्तक्षेप किया है। तो देखिए, मुझे ऐसा, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कह सकता हूँ कि जो कल्याण लोगों का कर रही है, जहां पर मान लीजिए भूख का सवाल है, जहां पर सेहत का सवाल है और जहां लॉन्ग टर्म लोगों की भलाई का सवाल है, वो कल्याणकारी में आ जाती है। पर जब
जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हालांकि नहीं है ये सब बात करने के लिए, बस जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए वोट लेने के लिए अगर कोई ऐसा लुभावनी चीज देती है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई साइकिल दे रहा है, कोई टैबलेट दे रहा है, तो ऐसी चीजें उसको फिर हमें मुफ्त माना जाना चाहिए। उससे फिर ओवरऑल, आपने दूसरा हिस्सा था कि ओवरऑल अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता है। बहुत सारे राज्यों की इस समय जो फिस्कल पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं है, उन पे उधार चढ़ता जा रहा है। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक PIL का संज्ञान लेते हुए और इस पे पैनल बनाने की भी रिकमेंडेशन दी है। आपका दूसरा सवाल था कि कब आप एक्सपर्ट, आपको सच बात बताऊं, मैं राज की बात बताऊं जितेंद्र जी, कान लगा के सुनिएगा, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं कह सकता। मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि एक्सपर्ट बनते नहीं है, एक्सपर्ट होते हैं। मैं भी बहुत स्टॉक मार्केट में बहुत साल से जुड़ा हुआ हूं। इसका अर्थ ये कि वो ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई का किसी को पता नहीं है। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि हमने समुद्र की सतह को छू लिया। तो उसमें यह है कि आप धीरे धीरे, आप जैसे जैसे करते जाते हैं, आपकी ज्ञान वर्धन होता जाता है, आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जाती है। टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज है, इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज है। मोटा मोटा आपको अगर आप लगातार कर रहे हैं तो 4-6 महीने में, मेरा तजुर्बा कहता है, समझ में आने लग जाता है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं। और शरद जी वैसे कहते हैं कि सीखना तो है वो जिंदगी भर चलते रहता है। बिल्कुल, सीखना का वही, और खासकर निमिष स्टॉक मार्केट में जी, तो मुझे लगता है आदमी सारी उम्र स्टूडेंट ही बना रहे हैं तो बेहतर है। अपने आप को एक्सपर्ट ना कहे, क्योंकि जब भी किसी ने एक्सपर्ट बनने की भविष्यवाणियां करी या कोई ऐसी एनालिसिस करी, वो कभी ना कभी आके वो उल्टे औंधे मुंह गिर जाती है। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि एक्सपर्ट, बाकी इनको हम हताश नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से 6 महीने तक आप लगातार जितेंद्र जी करें तो आपको हम एक्सपर्ट मानने लगेंगे। हमें बताइएगा आपने क्या सीखा जी। And the next caller is Bharat from Delhi, but before we take his call, let's go in for a break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से भरत जी, नमस्कार, अपना सवाल जी। सभी को नमस्कार सर, और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अपना सवाल सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो भारत में जो सेमीकंडक्टर और ड्रोन बनाने वाले कंपनी का भविष्य क्या है, और सर साथ में जो हमारे किसानों की आय दुगनी करने की सरकार ने जो पहल की है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस ओर सरकार ने क्या क्या कदम ऐसे उठाए हैं जिससे किसानों की आय दुगनी हो सकती है, मुख्य बिंदु पे थोड़ा चर्चा कीजिए। धन्यवाद सर। चलिए, भारत, मेरे ख्याल इनका पूरा नाम भारत, मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ कि आवाज से मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। बहुत आसान और बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे थोड़े मुश्किल सवाल नहीं, आपने बहुत आसान पूछ लिया है। एनीवे, सेमीकंडक्टर और ड्रोन का भारत में भविष्य, भारत भूषण जी, बहुत उज्जवल है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की दुनिया भर में शॉर्टेज देखी जा रही है। हम जानते हैं ताइवान की एक कंपनी TSMC है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा शेयर है सेमीकंडक्टर का। अमेरिका इस पर बहुत काम कर रहा है। तो अगर भारत, इसके लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए होता है, ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता है इसको मैन्युफैक्चर करना, पर भारत सरकार ने इस बात का संज्ञान लेते हुए और इसमें निवेश को बढ़ावा दिया है और निवेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले चंद सालों में हम सेमीकंडक्टर मार्केट में अपना वर्चस्व जमा चुके होंगे और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेंगे। ड्रोन का भी यही हाल है। ड्रोन तो भारत में, अब जब से भारत सरकार ने ड्रोन में लिबरलाइजेशन करी है, उसके इस्तेमाल को नई गाइडलाइंस निकाली है, मुझे लग रहा है कि ड्रोन का भविष्य बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। पहले हम ड्रोन खाली बारात के ऊपर से फोटो खींचने के लिए होता था, आज ड्रोन का इस्तेमाल खेती तक में हो रहा है। और दूसरा इन्होंने एक चीज और पूछा था, अनुभव, कैन यू रिमेम्बर व्हाट ही आस्क्ड? He asked what is the government of India doing for for farmers' income? बिल्कुल, किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और काफी हद तक इसमें कवर भी किया है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको सीधा, जो MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर सरकार खरीद करती है और जो MSP सेट की जाती है, उसमें स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन से सरकार ने उसका संज्ञान लिया। MSP धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है।
देखिए, सरकार को ये देखना होता है कि किसान की आय डबल करने के लिए तो सरकार वचनबद्ध है, पर जब देश में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, तो थोड़ा सा उसको फूक कर पग धरा जाता है। हालांकि सरकार, मैं फिर कहना चाहूंगा, वचनबद्ध है, जरूर करके रहेगी, पर धीरे धीरे उस लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, क्योंकि एकदम अगर आप बढ़ा देंगे तो आम कंज्यूमर, जिसमें किसान स्वयं भी है, क्योंकि खाने पीने की चीजों से और बहुत चीजें बनती हैं, तो किसान स्वयं भी इन्फ्लेशन का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए अभी इन्फ्लेशन जब तक धीरे धीरे जैसे कंट्रोल में आएगी, हालांकि सरकार काफी इसमें ग्राउंड तय कर चुकी है और ये किसान की आय डबल होना लगभग तय लगता है, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं नजर आती। And the next caller is Bhopal. I beg your pardon. The next caller is Shankar from Bhopal. But before we take his call, let's have a look at the story, which is about the Sensex and how it behaved during the week. At the stock markets rising for the fourth straight week, the Sensex climbed 1,075 points or 1.8% to end the week at 59,463 yesterday. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 301 points or 1.7% to end at 17,698. In the broader market, the BSE Mid Cap Index added 1.2% and the Small Cap Index rose 1.1%. And now, Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, Kohli. Good evening, Market Mantra team. Good evening. So, in this same context of Sensex, we have observed that whenever paper stock or those stocks which have been lying for quite some time and start moving up, that means there is a saturation of flow of fund. Is it so? And what do you think in the context of FIIs? Have they pumped in all the money or a lot, or they are still to come and we can expect some more rise in the Sensex in next few months? मुझे निमेश इनकी आवाज बिल्कुल ना के बराबर आ रही थी। Kohli, he wanted to know about the FIIs, whether they have already pumped in all the money or whether there's still more scope, and also how the markets are likely to behave in the coming weeks. Okay, all right. Shankar, we cannot say that FIIs or FPIs, we call them, better these days. They have just started after the massive pullout for almost a year. We just saw in the month of July about 5,000 crores coming back to the market, which is a very welcome sign because that was the main reason why the market started sliding. Well, I think no worries, Shankar. The FIIs have a lot of money. The FPIs have a lot of money, and I think if they open their purses, we should be in for a big bull run. But this also leads to the second part of your question. My advice as far as stock markets and my forecast for stock market is cautious optimism. The market has entered a bull run. We have observed the last couple of weeks have been very good, from going down on Nifty 15,200 to 300. We are now over 17,500, which is indeed signaling a bull run. But then there are a lot of factors which are contrary to the market at this point of time, because I was mentioning during the day in Money Matters that the Russia-Ukraine conflict is not over. We've been hearing about the Zaporizhzhia nuclear plant being bombed again, which is a matter of stress and a matter of concern, not just for Europe, but for the rest of the world as well. The China-Taiwan tensions are still on. The things keep happening in West Asia. Plus, I don't think, the fear of recession has completely gone right now. So these are some of the key factors which are right now not very conducive to market. However, they remain subdued and the market goes into the bull run. But if these factors, they start showing their head, or if they become headline news, I think we'll expect market to go into corrective mode again. So I think, Shankar, as far as an investor is concerned, a trader is concerned, cautious optimism is my mantra for now. Yeah. हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मंत्र टीम को और कोहली जी को भी नमस्कार। सर, मैं एक रेगुलर इनकम टैक्स का रिटर्न भरता रहा हूँ जी, और अभी इस साल का मेरी हर साल की रिटर्न प्रोसेस हुई है जी। मुझे अभी एक SMS आया कि रेक्टिफिकेशन रिटर्न फॉर 2014-15 हैज बीन प्रोसेस्ड जी, CPC ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 जी, और विल बी सेंट बाय मेल तो अभी आई नहीं है। तो लेकिन रिटर्न मेरी प्रोसेस हो चुकी, दोबारा इतनी 6-7 साल पुरानी, फिर रेक्टिफिकेशन रिटर्न क्या होता है? प्रकाश, आप रेक्टिफिकेशन सेक्शन 154 में होता है, और रेक्टिफिकेशन ये जनरली SSE इसकी रिक्वेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने रिटर्न भरी और रिटर्न आपने कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन आई, आपको लगा कि कुछ उसमें त्रुटि हो गई है या आपकी तरफ से त्रुटि हो गई और रिवाइज रिटर्न की डेट निकल चुकी है, तो ऐसे में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है ठीक करने के लिए, जिसको हम सेक्शन 154 फॉर रेक्टिफिकेशन कहते हैं।
तो ये हो सकता है कोई आपका पुराना 14-15 का कोई आपने फाइल किया होगा, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, कई दफे याद नहीं रहता है, जिसको वो सिस्टम में अटका हुआ होगा, बैकलॉग होगा, जिसको डिपार्टमेंट ने अब क्लियर किया है और आपका वो 154 पे जो भी निर्णय था वो अब दे दिया है, उसका बाकायदा एक जजमेंट सा पास होता है, क्वाज़ाई जजमेंट हम कहते हैं। तो ये वो होगा, आप कुछ दिन इंतजार करिए, जब आपको पूरी डिटेल मेल आएगी तो उसमें आपको सारी कहानी पता लग जाएगी। अगर नहीं लगती है तो आप ई निवारण के थ्रू, जो ई निवारण की सुविधा है, उसके थ्रू आप एक क्वेरी डाल सकते हैं। उनको बोलिए कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पास ये आया है, ये क्या है। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा आप अपनी मेमोरी को प्रेस करें और याद करें कि आपने 2014-15 में किस चीज का रेक्टिफिकेशन फाइल किया था, क्योंकि बिना आपके फाइल किए स्वयं रेक्टिफिकेशन नॉर्मली नहीं आता है, अनलेस कि किसी का गलत पैन नंबर वगैरह डल गया हो, तो बात अलग है। ये प्रकार से। And the next caller is Gautam from Delhi. Gautam, welcome to the program. Please ask your question. Thank you. शरद जी, प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने स्कूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई में पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो इतना सुनाई नहीं देते जी। दूसरा, इनकी प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में नहीं होती, तो होती है तो एप्स वगैरह में पता नहीं चलता। कैसे इसको चेक किया जाए प्लीज? थैंक यू वेरी मच टू ऑल। गौतम, आपने ठीक कहा, प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल ठीक है। स्कूल कॉलेज में बड़े रट्टे मारते थे लोग, घोट घोट के पढ़ाए जाते थे, पर अब वो इतने नहीं दिखाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये थोड़ा सा, अगर मैं एक शब्द यूज करूं, आउट ऑफ फैशन है, तो बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। शुरू में जब इक्विटी मार्केट इंडिया की ब्लूम कर रही थी, उस समय प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाते थे, वो क्योंकि कुछ विशेष ग्रुप को या जो उसको जिस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना होता था वहां दिए जाते थे। तो अब प्रेफरेंस शेयर्स का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है, सही बात है। और जहां तक ट्रेडिंग की बात है, देखिए डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली जो सिक्योरिटीज मार्केट होती है उसमें ट्रेड किए जाते हैं। तो अगर आपको डिबेंचर्स में कंपनी के ट्रेड करना है, हालांकि कुछ एक लिस्टेड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वो लिस्टेड होते हैं, आप उसके थ्रू इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका रास्ता ये है कि जिस कंपनी के हैं उस कंपनी की जो इंटरमीडियरीज हैं, जो आगे उन्होंने एजेंट्स वगैरह अपॉइंट किए हो, उनके थ्रू आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी जो इसका पब्लिक ऑफरिंग आता रहता है, आप अगर शौक रखते हैं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने का, तो आप उसका ट्रैक रखें। उसकी अनाउंसमेंट बहुत बड़े स्केल पे इक्विटी की तरह तो नहीं होती है, पर जब आप इस मार्केट में घुसेंगे तो आपको अपने आप खबरें आने लग जाएंगी ऐसे शेयर के डिबेंचर्स कब इशू हो रहे हैं। हालांकि इक्विटी रिटर्न्स के मुकाबले डिबेंचर के रिटर्न बहुत कम होते हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी इक्विटी की है, ये सही बात है जी। And let's take a look at another story. On Wall Street, key indices closed higher yesterday as signs that inflation may have peaked in July increased investor confidence that a bull market could be underway and spurred the S&P 500 and the Nasdaq to post their fourth straight week of gains. So the Dow Jones Industrial Average climbed 424 points or 1.3% to close at 33,761. The S&P 500 advanced 73 points or 1.7% to end at 4,280, and the Nasdaq Composite added 267 points or 2.1% to close at 13,047. For the week, the S&P 500 advanced 3.3%, the Dow rose 2.9%, and the Nasdaq surged 3.8%. And now we are running short of time. We really have come to the end of the program. Mr. Kohli, thank you so much for joining us on the program and giving your advice to our listeners. My pleasure. Thank you very much. And before we close, a look at the headlines again. Country's exports, including merchandise and services, grow 11.5% to over $61 billion in July. Rising for the fourth straight week, Sensex climbs 1,075 points during the last week. And on Wall Street, Dow Jones advances 1.3% on increased investor confidence that the bull market could be underway. And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters and later in the day at 6:30 p.m. with Market Mantra. Till then, namaskar. Namaskar. Market Mantra.